Hello students, welcome back to the Tantray physics classes. I have already given you a lecture on friction. Today I will give you the lecture on problem set, that is friction with its applications and examples. So let me start with problem number first. Number one, we have an inclined plane here with angle 60 degrees and it's a body. Question is, what is coefficient of friction? What is coefficient of friction if the body is about to slide down? The body on the incline is about to slide down. This is question. क्या होना चाहिए coefficient of friction here so that body is just about to slide? It is not sliding down, but it is about to slide down. So it is just in equilibrium. It is just in equilibrium. मतलब अगर coefficient of friction उससे थोड़ा कम होगा, it will come sliding down. What is the coefficient of friction if between the body and the incline? What is the coefficient of friction if the body on the incline is about to slide? That is our question. So first of all, what are the forces acting on the body? So first of all, it is a gravitational force, mg, vertically downwards, and this is a normal reaction by the surface of the ground, and this gravitational force, you put it into components, and this component is 60 degrees. Again here 60, it is 90 to 30 to 60, और इसके दो components है, एक तो यहाँ से mg cos theta is cos 60, और दूसरा component यहाँ से mg sin 60. So this mg force is put into two components, mg cos 60, mg sin 60. So there are three forces. इसको छोड़ो आप, because it has been put into pieces. This one, and this one. और अगर friction नहीं होता, मतलब वो that is the something that we do to find the direction of frictional force. अगर friction नहीं होता, तो this body will come sliding down the incline. इसलिए frictional force का direction यूं है, along the surface. कितना? That is mu n. If it is about to slide, mu n, maximum frictional force will act. If the body is about to slide, that means maximum frictional force will act in the upward direction. That I have already discussed with you. So at equilibrium, or when the body is about to slide down, at equilibrium, so what we write? We write mu n is equal to mg sin of 60. So what is mu? तो वही तो निकालना है. What is n? Normal reaction. Normal reaction is equal to mg cos 60. Why? Because there is no motion in this direction. इस direction में कोई motion नहीं है, इसलिए ये force इस force के बराबर होना चाहिए, so that there is no acceleration in this in this line or on this line. Okay, so n is mg cos 60 is equal to mg sin 60. ये तो mg will cancel off from both sides. तो इससे मुझे मिलेगा mu, that is coefficient of friction. But mu is coefficient of friction, that is equal to sin 60 by cos 60, that is tan 60, or that is root 3 if you can substitute tan 60 root 3, and that is 1.72. That is 1.72 answer. So a body is here, it is about to slide down, frictional force will be maximum, and that will act in the upward direction, because if there is no friction it will slide down. तो आप इस दो फोर्स को इक्वेट कीजिए और आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा.
That's all. Question number 2 on friction. Question number 2 on friction. Question number 2 something like this. ये देखिए, ये एक सरफेस है, इस पर एक बॉडी है 20 kg का बॉडी, और इस पर मैं फोर्स देता हूं. तो क्वेश्चन मैं ऐसे बनाऊंगा. What is the coefficient of static friction? What is coefficient of static friction if a force of 75 Newton will make the body to just move on the surface. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? अगर 75 न्यूटन, इसको 75 न्यूटन में अप्लाई करूंगा तो इट विल जस्ट बिगिन टू मूव. So that means the frictional force will be maximum. It just begin to move. It's not moving actually. It will just try to move in the forward direction when the force is 75 Newton of force acts on the body. Okay. Also, let me make it again one more. What is coefficient of kinetic friction? Coefficient of kinetic friction. If 60 Newton force, if a 60 Newton, a force of 60 Newton will keep the body moving with constant velocity. Static friction भी निकालना है और kinetic friction भी निकालना है. Static friction, when 75 Newton of force will make the body to just move. While the body is moving, 60 Newton is needed to keep its velocity constant. So when it is moving, we have to find kinetic friction. When it is about to move, we have to find static friction. Okay, this is the question. Have a pause and just look at the question and try to solve it yourself, if you can. Okay? Right? Let me rub the question so that I can solve it on this. Okay. Okay. पहली बात यह है कि 75 Newton of force is needed to just move the body. Just move the body means there is a backward frictional force. That is maximum. That is mu S mg. It is mg downward force, and this gives the normal reaction upwards n. So n is equal to mg because there is no vertical motion. तो क्या लिखूंगा मैं for just to move? Just to move, 75 Newton of force is just sufficient to move the body in the forward direction. That means 75 should be equal to mu s mg. So 75 is equal to mu s mg. Let's say it is mu s n. पहले लिखना चाहिए तो mu s n, and n is equal to mg. That is the maximum static friction. So what is mu s? That is 75 by n. That is mg. That is okay. Mg. That is 75 divided by what is m? That's 20 into 10. Let me take g as 10. Mu s is equal to 75 by 200. That is 375 0.375 approximately. Okay, 75 divided by 2, 5b.
That is coefficient of static friction. That's all. Now, how to find the coefficient of kinetic friction if the body moves with constant velocity under the application of force of 60 Newton? आपने 60 Newton का force apply किया and body continues to move in the forward direction with constant velocity. आपको पता होना चाहिए when velocity is constant, net force is 0. But you are applying 60 Newton and still net force is 0 to keep the body moving with a constant velocity. इसका मतलब opposing जो kinetic frictional force है, that should also be 60. That should also be 60. Now see here, this is a body 20 kg, 60 Newton, and it moves with constant velocity. That means the net force on this body is 0, but you are applying 60 Newton force in the forward direction. So backward force should also be the same, but backward force is frictional force. When the body is in motion, what is the frictional force? जब body motion में होता तो how much is the frictional force? That everybody should know, mu k n. It is mg, n is normal reaction upwards, so n is equal to mg. So what should I write for equilibrium? For dynamic equilibrium, because the body is in dynamic equilibrium. When the body has a constant velocity, समझो कि equilibrium में है, but dynamic. इसमें आप 60 न्यूटन का फोर्स आगे की ओर देते हैं. जब 60 न्यूटन का फोर्स आप आगे की ओर देते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इतना ही 60 न्यूटन का होना चाहिए विद द फार्मूला दैट यू नो, म्यू के एम जी. तो तभी तो बॉडी आगे जाकर के कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करेगी. तो क्या लिखूंगा मैं? यस, 60 इज इक्वल टू म्यू के एन. 60 is equal to mu k, what is n? mg. So mu is equal to 60 by mg, that's 20 into 10. That is, this cancels off 0.3 is the coefficient of kinetic friction, slightly less than the static friction. That's all. That's all. Third one. Third question. Third one. Third one. Let me take one more question that I make here. It's a truck here. It's a truck here moving in the forward direction with some acceleration, and there's a block here of mass m. My question that I make for this kind of a situation is that what is the maximum acceleration of the truck? What is the maximum acceleration of the truck so that the block does not slide? What is the maximum acceleration of the truck so that the block does not slip, so that the block does not slip. That is all. ये हमारा क्वेश्चन है. ये इसका एक्सेलरेशन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक स्लिप न करे, स्लाइड न करे. तो कंडीशन क्या है स्लाइडिंग के लिए? कंडीशन ये है कि ये ब्लॉक जो है जब ट्रक मूव कर रहा है फॉरवर्ड की ओर विद सम एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक को विच फोर्स एक्सेलरेट्स दिस ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? ट्रक तो एक्सेलरेट होता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रिक्शनल फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड. तो इस ब्लॉक को आगे एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है इस ब्लॉक को? फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ दिस ट्रक एंड द ब्लॉक में जो फ्रिक्शन है वही फ्रिक्शनल फोर्स इसको आगे की ओर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है. लेकिन उस वो जो फोर्स है फॉरवर्ड फोर्स, ये जो ट्रक का जो ये सरफेस है ये उसको फ्रिक्शनल फोर्स आगे प्रोवाइड करता है आगे. हाँ, तो ये आपको जानना चाहिए. वही तो मैंने आपको बताया था, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये स्लिप होगा पीछे की ओर. ट्रक पर ही ऑब्जेक्ट स्लिप हो जाएगा पीछे की ओर, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स इज फॉरवर्ड. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन निकालना भी एक टेक्निक के तौर पर आपको मैंने सिखाया है. वो लेक्चर पहले अच्छी तरह से देख लो, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. यहां फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन फॉरवर्ड है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका मैक्सिमम वैल्यू है.
इट हैज गॉट ए मैक्सिमम वैल्यू। जब इसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब इस एक्सेलरेशन जो फॉरवर्ड है उसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। वो मैक्सिमम वैल्यू उससे ज्यादा अगर एक्सेलरेशन ट्रक का होगा तो ये सस्टेन नहीं कर सकेगा, ये स्लिप करेगा। यानी कि इस ट्रक का जो एक्सेलरेशन वो इस ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा तो स्लिपिंग टेक प्लेस। तो इसका एक्सेलरेशन समझो ए, लेकिन मुझे बताइए इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसका क्या एक्सेलरेशन मिलेगा? इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इसको क्या कौन सा एक्सेलरेशन मिलेगा? मैक्सिमम। सो व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स? दैट इज म्यू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज म्यू mg. This is the maximum frictional force. What is the maximum acceleration possible? Maximum acceleration caused in this. उससे ज्यादा एक्सेलरेशन इसका होगा नहीं किसी भी सूरत में, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है और फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन कॉज होगा। उससे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ए मैक्स इज इक्वल उससे कम कर सकता है, उससे कम एक्सेलरेशन हो सकता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्टिंग है ना, एडजस्टिंग है फ्रिक्शनल फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल क्रिएटेड बाय द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो कितना होता है? म्यू mg बाय m, फोर्स बाय मास, ये खत्म होकर के म्यू g। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू g उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस ए का एक्सेलरेशन म्यू जी से कम है, समझो इट विल मूव टुगेदर। अगर ए का एक्सेलरेशन म्यू जी के बराबर भी होगा, दे विल मूव टुगेदर। अगर ये एक्सेलरेशन समझो म्यू जी से ज्यादा होगा, अगर ये एक्सेलरेशन म्यू जी से ज्यादा होगा, सपोज यहां मैक्सिमम एक्सेलरेशन सपोज मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो फ्रिक्शन की वजह से मैक्सिमम एक्सेलरेशन 10 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन हमने 20 कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसका एक्सेलरेशन 20 लेकिन इसका एक्सेलरेशन 10, लेकिन ये जो ब्लॉक है ट्रक पर है, इसका एक्सेलरेशन 20, इसका एक्सेलरेशन 10, तो ये मिसमैच होगा दो एक्सेलरेशन, सो इट विल रिसीड अवे, तो ये स्लिप पीछे की ओर हो जाएगा। इट विल स्टार्ट स्लिपिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये स्लिप करेगा जब ये एक्सेलरेशन ये इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा। सो आंसर इज इफ ए इज ग्रेटर देन म्यू जी देन स्लिपिंग विल टेक प्लेस। अगर ये एक्सेलरेशन म्यू जी से कम है तो दे विल मूव टुगेदर, क्योंकि तब अगर ये एक्सेलरेशन 10 से कम है, 9 है, तो इसका एक्सेलरेशन भी 9 ही होगा, एडजस्ट करता रहेगा। अगर इसका एक्सेलरेशन 8 है ट्रक का, तो इसका भी एक्सेलरेशन 8 ही होगा, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बाद में एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन आप पर डिपेंड करता है। आपने इसको एक्सेलरेशन और दे दिया, मिसमैच होना शुरू होगा, इट विल स्लिप बैकवर्ड्स। सो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज ग्रेटर देन म्यू जी देन स्लिपिंग विल टेक प्लेस। खत्म हो गया क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Fourth question is a table type of a case here. Table, इस टेबल पर स्ट्रिंग है या चेन समझो, हैंग भी कर रहा है और हैंग कर रहा है L/4 पार्ट 25%, और यहां पर 75%, हाँ वो कितना हुआ 3L/4 75%, और बैलेंस है due to friction between this table surface and this string and the chain. The chain is balanced in equilibrium. The chain is in equilibrium. The chain is in equilibrium. What is the coefficient of friction? What is coefficient of friction? ये हमारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? पहली बात ये जो चेन का पार्ट है, इट क्रिएट्स डाउनवर्ड फोर्स mg, लेकिन m का जो ये है
m का जो मास है, कितना मास, हैंगिंग मास है, यस, दिस इज द मास mg ऑफ दिस पार्ट, और यहां से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, हमें देखना है ये वेट कितना है इस पार्ट का, और इस पार्ट पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो वहां से हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल सकता है। लेकिन ये जो m है ना, हाँ, तो अगर सारे चेन का मास m लिया जाए तो ऑब्वियसली L/4 का मास m/3 लिया जाएगा, वो भी कर सकते हैं, यहां 3m/4 किया जा सकता है। हाँ, अगर हम सोचेंगे लेट लैम्डा बी द मास पर यूनिट लेंथ, let lambda be mass per unit length, तब जाकर इजी हो जाएगा, ये मास भी निकलेगा और इस m डैश का भी मास निकलेगा। अच्छा, तो व्हाट इज द इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट to solve the problem? So what is the equation? So this force should be equal to this force. तो क्या है ये फोर्स? mg is equal to frictional force, that is mu n, that is mu. What is normal reaction? Normal reaction is m prime g. अगर यहां से यहां मास m प्राइम है तो it is mg. But what is m? What is m? M is, okay, lambda L/4. If lambda is the mass per unit length, what is the mass of L/4 part? Lambda into L/4, g. That is mu. What is m prime? That is mass of this part. So how much is this part? 3L/4. So lambda times 3L/4 if lambda is mass per unit length into g. Lambda L and g finish. 4 on 4 finish, and mu is equal to 1/3. That's it, 0.33. That's it, खत्म हो गया। तो फिर से एक बार बता रहा हूं, ये जो पार्ट है इट पुल्स इट डाउन, ये जो पार्ट है इट कीप्स इट फ्रॉम फॉलिंग। तो दिस फोर्स इक्वल टू दिस फोर्स विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एज सिंपल एज दैट। फिफ्थ, ये जरा देखिए, एक प्रॉब्लम बनाता हूं मैं। यहां एक टेक्निक आप सीखेंगे। ये एक ब्लॉक है और ये एक स्ट्रिंग है और एक ब्लॉक इधर है। ये फोर्स हमने 1 न्यूटन का फोर्स यहां से दिया, 1 न्यूटन, और यहां से इस ब्लॉक पर मैंने 8 न्यूटन का फोर्स दिया, राइट? और ये 2 kg है, 2 kg। ये 2 kg है और ये 3 kg का मास है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0. इसको 2 कर दो, 0.2, और यहां इस बॉडी और इस सरफेस के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ 0.1, μ1। मतलब इस ब्लॉक और इस सरफेस के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट है, और इस ब्लॉक और इस के दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट है। हमें क्या निकालना है? व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड? हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स इस पर क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इस पर क्या है, टेंशन इस स्ट्रिंग में क्या है। वो तो टेंशन ऑलवेज पुल्स, उसका डायरेक्शन हम दे सकते हैं पहले ही, टेंशन पुल्स हियर on the body of 3 kg and tension also pulls here. मुझे ये टेंशन भी निकालना है, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना है। इस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है और इस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, वो भी मुझे निकालना। These are the two bodies. One force acts here 1 Newton, here acts 8 Newton, and tension is here away and away. और फ्रिक्शनल फोर्स भी पता भी नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है। तो पहली बात यह है कि हमें यही पता नहीं चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स किस ओर है। तो अब जरा देखो टेक्निक मैंने जो आपको पहले बताया था। समझो देयर इज नो फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन नहीं है, 8 न्यूटन यहां, 1 न्यूटन यहां। अंडर दिस द नेट फोर्स क्या है इस सिस्टम पर? नेट फोर्स इस सिस्टम पर 8 - 1 दैट इज 7 न्यूटन टू द राइट साइड। 7 न्यूटन टू द राइट साइड विल मेक दिस बॉडी टू मूव ऑन द राइट साइड, दिस ऑन आल्सो टू द राइट साइड। जब ये राइट साइड मूव करना शुरू करेगा विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स, अब मैंने बताया आपको, इमेजिन देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज देयर बट यू हैव टू इमेजिन फॉर द मोमेंट देयर इज नो फ्रिक्शन। जब नहीं है फ्रिक्शन तो बॉडी विल स्लाइड टू द राइट, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज हियर, ये फ्रिक्शनल फोर्स सपोज 2। लेकिन यहां पर अब इसका फैसला पहले होगा, फिर देखेंगे इस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो। यू कांट राइट अब ये फ्रिक्शनल फोर्स यहां और इसका यहां, अभी इसका फैसला करना है। अच्छा, मगर ये जो सिस्टम है 8, 1 फोर्स, 2 kg, 3 kg टेंशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पहले ही क्वेश्चन में है, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। In equilibrium under all forces, मतलब जो भी फोर्सेस है उन फोर्सों के अंडर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यानी कि सिस्टम डज नॉट मूव। वो हमने जब फ्रिक्शन एब्सेंट किया था तब जाकर मूव करने लगा था इन द इमेजिनेशन। अच्छा, यहां पर और एक चीज है, अब मुझे पता है ये फ्रिक्शनल फोर्स भी है और टेंशन भी है, लेकिन देखो टेंशन कब प्रोड्यूस हो जाता है? जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, जब स्ट्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा तब टेंशन प्रोड्यूस होता है। अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा, टॉट नहीं होगा, तो टेंशन नहीं है, टेंशन जीरो है। मतलब ये हुआ जब ये बॉडी when it will about to move, तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, बाद में टेंशन एक्टिवेट हो जाएगा। ये आप याद रख लो कि जब ऐसा सिचुएशन है पहले फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, बिकॉज व्हेन इट बिगिंस टू मूव फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स, आफ्टर इट मूव देन टेंशन इज क्रिएटेड। तो टेंशन तभी क्रिएट होगा जब ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने से पहले फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो मैं आप यहां लिखना चाहूंगा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स then tension acts. Go. Frictional force will activate the first the frictional force will activate. The frictional force will activate. Then tension. पहले फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा और बाद में टेंशन क्रिएट हो जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, तो यहां अब मुझे बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स? F2 मैक्स, नीचे की ओर mg, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन, तो यहां का नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है। बताइए F2 मैक्स, वो आंसर नहीं है, वो देखते हैं हम कितना होगा F2x, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना अप्लाई होगा, बाद में फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो भी देखना पड़ेगा, शायद मैक्सिमम ही हो फॉर इक्विलिब्रियम। तो बताइए व्हाट इज F2 मैक्स? दैट इज μ2 mg, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट इज μ2? 0.2। व्हाट इज m? दैट इज 3 × 10, दैट इज 6 न्यूटन। ये 6 न्यूटन है। बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, राइट के और 8 न्यूटन का फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स सारा खर्च हो गया, समझो सारा इसने अपना फोर्स अप्लाई किया, 6 न्यूटन बराबर। उसके बाद भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहने वाला है, इसका मतलब टेंशन इज 2 न्यूटन। देन टेंशन इज 2 न्यूटन, टेंशन 2 न्यूटन है। टेंशन इज 2 न्यूटन। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गए, वो पहला फ्रिक्शनल फोर्स सारा अपना मतलब एग्जॉस्ट करेगा, पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फिर कुछ बचता है समझो टेंशन विल एक्टिवेट। अच्छा, अगर ये 2 ये भी 2 न्यूटन है, अगर ये 2 न्यूटन है, जरा यहां बताइए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? वो आंसर तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा। दैट इज 0.1 म्यू mg 2 × 10, वो हो गया 2 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज 2 न्यूटन, वो मैक्सिमम है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अप्लाई हो जाए, मैक्सिमम है। यहां से 2 न्यूटन का फोर्स है, 1 न्यूटन आपने पहले दिया, सो फ्रिक्शनल
force is 1 Newton. So friction F1 is 1 Newton. 2 Newton maximum है, but it does not need to go to the 2 Newton maximum value. It will provide only 1 Newton because it is self-adjusting force. It will only support to balance the body. 2 Newton 1 तो पहले ही था, अब फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन होगा. यह 2 न्यूटन भी हो सकता था. अगर यहां से 3 न्यूटन होता तो यह अपना सारा फोर्स दे देता 2 न्यूटन, लेकिन इसको देने की जरूरत नहीं है. इट्स 1 न्यूटन. दैट इज ऑल. तो यहां पर ये टेक्निक सीख लो कि फ्रिक्शनल फोर्स पहले एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद टेंशन एक्टिवेट हो जाता है. इफ फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट एबल टू बैलेंस और इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द कंडीशंस, देन टेंशन कम्स इन. फिर टेंशन आगे जाकर के आ जाता है. सिक्स्थ, इट्स एन इंक्लाइन. ऐसे देखिए, यहां पर ये फिक्स्ड स्टैंड है, ये स्ट्रिंग है और ये मास है, और ये 37 का एंगल है. इट्स ए गुड एंगल बिकॉज साइन 37 इज वेल नोन 3/5. 37 का एंगल है ये, और इसका मास m है, और ये इसके साथ टच करता है. ठीक. एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज 0.8. म्यू इज 0.8. बॉडी बैलेंस्ड है बिकॉज स्ट्रिंग के साथ हैंग कर रहा है. बॉडी बैलेंस्ड है, ये कोई मोशन इसका नहीं है. सो इट इज एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. तो वी हैव टू फाइंड टेंशन कितना है एंड हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स भी निकालना है, टेंशन भी निकालना है. अच्छी तरह से देखिए, व्हाट इज टेंशन. And what is tension and frictional force? The body is in equilibrium. बॉडी इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि नेट फोर्स इज 0. मतलब यहां का फोर्स जो है upward force is equal to downward forces. This force is equal to this force. Total upward force equal to total downward force. Along this plane जो है, जो upward force हो गया उतना ही downward force होगा. That is equilibrium. तो बताइए क्या होगा ये? It is mg. और क्या होगा ये कंपोनेंट? mg cos of 37. क्या होगा ये कंपोनेंट? mg sin 37. क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन? इसके बराबर. हाँ, तो अब ये तो खत्म हो गया. फोर्सेस तो यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है नहीं, हमें इन फोर्सेस का कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो बताइए ये फोर्स जो है ये किसके बराबर है? mg sin 37. बताइए. यस. तो मास किसके बराबर है? व्हाट इज मास इक्वल टू? Mass is equal to 1 kg. 1 kg का मास है. चलो लेट अस सी. हम देखेंगे टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, देखते हैं. लेकिन बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, सो यू डोंट नीड टू बॉदर. बॉडी इक्विलिब्रियम में. चलिए पहले मैं निकालना चाहता हूं ये फोर्स, दिस फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, F down, downward force, ये वाला. That is mg sin of 37. So go m is 1, g is 10, sin 37 is 3/5. Yes, 3/5. That is 2. That is 6 Newton. 6 Newton का फोर्स है ये. 6 Newton का फोर्स है ये. ये है 6 Newton का फोर्स. अब यही पता नहीं कि बैलेंस करने के लिए टेंशन कितना लेता है फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लेता है. इन टेंशन और फ्रिक्शनल फोर्स को ये बैलेंस करना पड़ेगा. इन दोनों का सम 6 न्यूटन होना चाहिए. क्लियर? भाई ये फोर्स जो है 6 न्यूटन का फोर्स है. अब ये दो ऐड करके 6 होने चाहिए ताकि बॉडी रिमेन इक्विलिब्रियम. लेकिन हमें यही पता नहीं है कि टेंशन कितना शेयर लेता है और फ्रिक्शनल फोर्स कितना शेयर लेता है. ये तो देखना पड़ेगा. अच्छा,
विदाउट फाइंडिंग द फ्रिक्शनल फोर्स आई मस्ट फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। उससे पता चलता है बहुत सारी चीजों का पता, बिकॉज इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखता हूं मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। ठीक है, एफ मैक्स दैट इज म्यू एन, दैट इज म्यू एन इज व्हाट, एम जी cos 37, ये वाला, क्योंकि n तो इसके बराबर है, because there is no motion in this direction, so this is equal to this, right? So it is mu is 0.8, m is 1, g is 10, and cos 37 is 4/5. ठीक, ये पॉइंट खत्म हो गया इसके साथ, एंड it is 32/5. It is 6.4. 6.4 is the maximum frictional force. जो ये फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वो 6.4 है। नीचे की ओर 6 आप नीचे की ओर फोर्स है, तो अब मुझे बताया फ्रिक्शनल फोर्स कितना होना चाहिए। वो तो एडजस्टिंग है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स विल नॉट बी एक्टिवेटेड, मैक्सिमम पर तो नौबत ही नहीं आएगी। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है 6 न्यूटन, इट विल एडजस्ट 6 न्यूटन, क्योंकि मैक्सिमम 6.4 न्यूटन है। तो इसका मतलब इट विल एडजस्ट टू द 6 न्यूटन फर्स्ट विदाउट गोइंग टू द मैक्सिमम वैल्यू। और जब इस फ्रिक्शनल फोर्स ने ही इसको सेटिस्फाई किया, इसको बैलेंस किया, तो टेंशन पर तो कोई टेंशन को कोई शेयर ही नहीं मिलेगा, जीरो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के बाद टेंशन एक्टिवेट होता है। जब फ्रिक्शनल फोर्स ने बैलेंस किया तो टेंशन को कुछ मिलेगा नहीं, जीरो। सो इट विल नॉट स्ट्रेच द वायर because tension will balance it, the wire will not stretch, therefore tension in this string is zero. That's all, khatam ho gaya. Okay, now seventh one. It's a wall, vertical wall, and it's a block here, and you are applying a force here, F, at an angle of 30 degrees, right? And it has a mass M. The block is balanced. The block is in equilibrium. The block is in equilibrium. What is the frictional force? What is the frictional force? What is the frictional force? Direction भी और magnitude भी, direction भी, direction and magnitude, दोनों चीजें हमें निकालनी। आपने फोर्स अप्लाई किया, जो दिया होगा, मास भी दिया है, 30 डिग्रीज पर भी है, ये 100 न्यूटन का फोर्स दिया है, और मास जो है दैट इज 8 kg, दैट्स 8 kg, एंड वेयर इट इज एन इक्विलिब्रियम। या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम में है ही, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन इट्स, वी हैव टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इट शुड नॉट फॉल डाउन एंड इट शुड नॉट गो अप। So how much frictional force is needed? पहले मुझे बताइए, इस फोर्स के 2 पीसेस कर दीजिए, तो यहां से कितना पीस आता है, 100 cos 30, तो यहां से कितना पीस आता है, sorry, it is the force, it is 30 degrees, it is 100, it is यहां से इसका कंपोनेंट जो है दैट इज 100 cos 30, यहां से जो कंपोनेंट है दैट इज 100 sin 30, ये, और व्हाट इज द डाउनवर्ड वेट, दैट्स mg, व्हाट इज m, दैट्स 8
व्हाट इज जी? दैट्स 10, 80 न्यूटन। तो अपवर्ड फोर्स कितना है? अपवर्ड फोर्स ये है, डाउनवर्ड फोर्स ये है। दिस द अपवर्ड फोर्स on the block, this is the force towards the wall, but wall will give reaction, normal reaction in this direction, that will balance this force. वो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, लेकिन इस डायरेक्शन में मोशन होने का खतरा है। हाँ, तो फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये 80 न्यूटन है डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स दैट इज 100 into 1/2, दैट इज 50। अब मुझे बताइए व्हाट इज द नेट फोर्स? इस पर फ्रिक्शनल फोर्स को जाने दीजिए फिलहाल, मैं ये दोनों फोर्स का नेट निकालना चाहता हूं, बिकॉज यू नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज टू नेट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा नेट फोर्स के अपोजिट होता है, क्योंकि उसको बैलेंस करने होता है। वो दो तो सपोर्टिंग फोर्स है, वो जो एडजस्टिंग फोर्स है। जो नेट फोर्स होता है तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट एक्ट करेगा टू किल दैट फोर्स। किल करेगा तो कर सकता है, मैक्सिमम फोर्स लेकर के किल करेगा तो ठीक है, नहीं किल करेगा तो एक्सेलरेशन हो जाता है। लेकिन यहां तो किल करना ही पड़ेगा फोर्स को, क्योंकि बॉडी इज ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देयर इज नो वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉडी। सो नेट अप डाउनवर्ड फोर्स तो 80 है, अपवर्ड 50 है। सो नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना? 80 डाउनवर्ड, 50 अपवर्ड, दैट इज 30 डाउनवर्ड। ये मैं बनाऊंगा ऐसे 30 डाउन। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? बताइए जरा, बताइए। यस, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इट इज नेट अप्लाइड फोर्स। नेट अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होना चाहिए to kill it, to balance it. So it should be 30 upwards. Answer. Because it is in equilibrium. ये net force 80, 50, so net is 30 down, तो frictional force is upwards. यानी कि अगर frictional force नहीं होता तो it will slide down, it will move down, so frictional force is upward. वो एक टेक्निक जो मैंने आपको बताया, imagine there is no friction and watch the tendency of motion of the body, frictional force opposed to that. With this problem, I end my lecture, but you continue to watch my lectures on the YouTube and also download my app where these questions, objectives are given in large numbers, and you can download those questions and objectives so that we can proceed ahead solving those questions here in the lectures. Also, there's a whole lot of so many lectures available on the app, so you need to download the app, Dr. Physics classes from Google Store. Thank you.